بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ابا کے ساتھ کھیتوں میں گندم کاٹنے آئی تھی کیونکہ فصل پک کر تیار ہو گئی تھی اور میرا ایک غریب مزارے تھا۔ وہ گاؤں میں وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ میں بھی اماں کی مدد کے خیال سے کھیتوں میں آ جاتی تھی کیونکہ میرا کوئی بڑا بھائی تو نہیں تھا، ساتھ ہی چھوٹی بہن بانو بھی میرے ساتھ آ جاتی۔ یوں ہم دونوں بہنیں مل کر ابا کی مدد کر دیا کرتی تھیں کیونکہ ہمیں پورے سال کی گندم بھی جمع کرنی ہوتی تھی۔ جو جتنی زیادہ گندم کاٹتا اس سے اتنی ہی زیادہ گندم ملتی تھی۔ ویسے تو وڈیرا ہر سال لاکھوں روپے منافع کماتا تھا۔ وہ اپنی فصل سے حاصل ہونے والی گندم کو بیچ کر لاکھوں کروڑوں روپے کماتا تھا، لیکن غریب مزاروں کو اتنی گندم ملتی تھی کہ وہ پورے سال بمشکل اپنا گزارا کر سکیں۔ سورج کی تپش بھی خوب پڑ رہی تھی، لیکن اچانک ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے الٹیاں لگ گئی تھی۔ ابا میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، پھر پیار سے کہنے لگے، جا میری دھی، گھر چلی جا، تیری طبیعت ٹھیک نہیں، مانو میرے ساتھ ہے، تو میری فکر کیوں کرتی ہے؟ ابا کے اصرار پر میں گھر کی طرف جانے لگی۔ جب راستے میں میری نظر پرانے کنویں کے پاس کھڑی اس سفید بکری پر پڑی تھی۔ وہ شدید گرمی کے موسم میں پیاسی لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ بکری کس کی ہے، کیونکہ میں نے آج تک اتنی سفید اور خوبصورت بکری اپنے گاؤں میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کے گلے میں رسی بھی نہیں تھی، کہیں غلطی سے یہ معصوم جانور کنویں میں نہ گر جائے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خود ہی چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اب میں اسے بہلاتی ہوئی گھر لے آئی تھی۔ دل میں سوچا کہ جس کی ہوگی وہ خود ہی گھر لینے پہنچ جائے گا۔ اماں حیران تھی کہ یہ بکری کس کی ہے۔ پھر اماں نے اسے باڑے میں باندھ دیا اور میں خود شربت بنا کر پینے لگی کیونکہ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اماں تو مجھے کھیتوں میں جانے بھی نہیں دیتی تھی، کہتی کہ تیرا سفید رنگ جل جائے گا، لیکن مجھے ابا کا خیال آتا تھا، کاش میں ایک بیٹا ہوتی تو ابا کا سہارا بن جاتی۔ اب ابا شام کو ہی کھیتوں سے کام کر کے لوٹتا، جب تک میں اس بکری کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ لیکن اچانک ہی میری نظر اس بکری کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر پڑی تو حیرت کے مارے میں بت بن گئی تھی۔ پہلی بار کسی جانور کو میں نے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں پیار سے اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگی، کیوں روتی ہو؟ کیا بھوک لگ رہی ہے؟ وہ بے زبان بھلا مجھے کیا جواب دیتی۔ تبھی میں نے اماں سے کہہ کر اس کے لیے چارہ منگوایا، لیکن اس نے چارے کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ شام کو ابا آئے تو میں نے اس بکری کا ذکر ابا کے سامنے کیا۔ ابا کہنے لگے، یہ گاؤں میں تو کسی کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے گاؤں کی بکری یہاں آ گئی ہو۔ چلو خیر ہے، جس کی ہوگی وہ خود ہی لینے آ جائے گا۔ جب تک تم اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ بے زبان بھی بیمار ہو، اسی تکلیف سے رو رہی ہو۔ اب میں سارے جانوروں کو چھوڑ کر اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اس دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میرے منہ سے چیخیں نکل گئی تھیں جب میں نے اس بکری کو، میرا نام رخسار ہے، میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میرے ابا ایک غریب مزارے تھا جو گاؤں میں رہنے والے وڈیرے کی حویلی اور زمینوں پر کام کاج کرتا تھا، اور اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا۔ میں جانتی تھی کہ ابا وڈیرے کا نوکر ہے اور اس سے نوکروں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اسے ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ بھری دوپہر میں ابا کو کھیتوں میں بھیج دیتا، پھر جیسے ہی فصل پک کر تیار ہوتی تو ابا کو کہتا کہ وہ کھیتوں میں جا کر کام کرے۔ ایسے میں ان کی مدد کرنے کی غرض سے میں بھی ساتھ چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ابا اس بات پر غصے کا اظہار کرتے اور کہتے کہ جوان بیٹیاں ایسے منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں جاتی۔ میں منہ بنا کر کہتی کہ ابا، میں تو آپ کی مدد کے خیال سے یہاں آتی ہوں۔ میں اور بانو ہم صرف 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں تھا جو ابا کا ہاتھ بٹاتا۔ ابا کو میری شادی کی بہت فکر تھی۔ اگرچہ گاؤں میں سے کئی رشتے میرے لیے آئے تھے، لیکن ابا کہتا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شہر میں کروں گا جہاں پر ہر سہولت موجود ہوگی۔ ابا کی اس خواہش پر میں اداس ہو جاتی تھی کیونکہ ہمارا شہر میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ پھر بھلا میرا نصیب اتنا اچھا کیسے ہو سکتا تھا کہ میرا رشتہ کسی اچھے شہر سے آ جائے؟
ऐसे भी अब्बा और अम्मा अभी तो पाई पाई जमा कर रहे थे मेरी शादी के लिए, क्योंकि हमारे गांव में रवाज था कि बेटियों को ट्रक भर कर जहेज दिया जाता था, जबकि मैं जहेज के सख्त खिलाफ थी। मैं अब्बा से कहती कि मैं जहेज में एक चीज भी लेकर नहीं जाऊंगी, लेकिन उनका कहना था कि जहेज देना हर माँ बाप का फर्ज है ताकि आगे चलकर उनकी बेटियां खुश रह सकें। लेकिन उस दिन कुएं के पास मिलने वाली उस बकरी ने तो मुझे हैरान कर दिया था। जब मैंने उसे रोते हुए देखा, वैसे तो अम्मा ने कई जानवर पाल रखे थे, हमारे घर में मुर्गियां भी थीं और चंद एक खरगोश भी, लेकिन बकरियां और बड़े जानवर नहीं थे। लेकिन उस बकरी को जब मैंने घर के दरवाजे से बाहर जाते हुए देखा तो मेरी चीखें निकल गई थी, क्योंकि दरवाजा मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था और वो बाहर जा रही थी। बमुश्किल मैंने उसकी रस्सी पकड़ी। अगर मैं 2 मिनट देर कर देती तो शायद वो ऐसे ही गायब हो जाती। फिर दूसरी सुबह मैं अम्मा अब्बा से कहने लगी कि इस बकरी ने तो रात को मुझे बहुत डरा दिया। अब्बा, आपने घर का दरवाजा क्यों खुला छोड़ा? अब्बा हैरान होकर कहने लगे, मैंने दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था, खुद अपने हाथों से ताला लगाया था। अब्बा की बात पर तो मैं हैरान रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? दरवाजा मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। उस दिन मैं खेतों में जा रही थी अब्बा का खाना लेकर। बानो तो सुबह ही अब्बा के साथ चली गई थी। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैं तेजी से उस सुनसान रास्ते से गुजरकर खेतों की तरफ जा रही थी, जब अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसे अपना वहम समझते हुए मैं तेजी से ये रास्ता पार करने लगी। तभी अचानक मुझे अपने बराबर में किसी की परछाई नजर आई। वो एक लंबा चौड़ा वजूद था। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही तेजी से पलटी तो सामने खड़े वजूद को देखकर मैं हैरान परेशान हो गई। वो एक खूबसूरत नौजवान था जो मुझे देखे जा रहा था। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं सहमे हुए लहजे में उससे पूछने लगी तो अचानक ही उसने मेरे हाथ में एक कागज पकड़ाया और खुद दूर खेतों में जाकर गायब हो गया। मैं उस सफेद कागज को देखकर हैरान थी, लेकिन जैसे ही उस पर लिखी तहरीर पढ़ी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उस कागज पर लिखा था कि मेरी अमानत तुम्हारे पास है, उसका ख्याल रखना। अब मैं सर थामे खड़ी थी। मेरी नजरें उसी नौजवान को तलाश कर रही थीं, लेकिन उसका तो साया भी दूर दूर तक नहीं था। मैंने उस कागज को अपनी मुट्ठी में बंद किया और अब्बा के पास चली आई। अब्बा मुझसे बातें कर रहे थे, साथ ही बानो और अब्बा खाना भी खा रहे थे, लेकिन मैं उन्हें हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। मेरा सारा ध्यान तो उस कागज पर था। वो नौजवान कौन था और उसने ये कागज मुझे क्यों दिया, और ऐसी कौन सी अमानत उसकी मेरे पास है? ऐसे कई सवाल थे जो मेरे सामने मुंह खोलकर खड़े हो गए थे। फिर मैंने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया और तेजी से बानो के साथ मिलकर खेतों में पकी हुई गंदम काटने लगी। जितनी तेजी से मेरे हाथ चलते थे उतनी ही तेजी से बानो की जुबान चल रही थी। उसका ख्याल था कि मैं हट हराम हूँ और तभी तो उसे अब्बा के साथ भेज देती हूँ, जबकि मैं खुद देर से आती हूँ। मैं उसकी बात को हंसी में उड़ा रही थी, क्योंकि मेरा उसकी बातों पर ध्यान नहीं था। लेकिन शाम को हम तीनों बाप बेटी घर गए तो अम्मा कहने लगी, इस बकरी ने तो मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, सारा दिन से बोल रही है। तुम पता तो करो कि ये किसकी बकरी है और कौन उसे इस कुएं के पास छोड़ गया था। मुझे तो ये अजीब व गरीब जानवर लग रही है। मैं उस बकरी के पास गई और बड़े प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरने लगी, लेकिन आज फिर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए थे। फिर अब्बा से कहने लगी, अब्बा ये रोती रहती है, जरूर इसके पीछे कोई वजह है, देखें तो सही कितनी कमजोर हो रही है। अब्बा, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन एक दिन मौलवी साहब को मैं बुलाकर ले आई और कहने लगी कि मौलवी साहब, इस बकरी के ऊपर आप दम कर दें, खुदा न ख्वास्ता इसे नजर तो नहीं लग गई, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। मौलवी साहब मेरी बात सुनकर हंस दिए थे। फिर उन्होंने उस पर दम कर दिया और कहने लगे, 3 दिन तक मैं इस जानवर पर दम करूंगा, हो सकता है कि किसी की बुरी नजर इस पर लग गई हो। फिर 3 दिन के दम के बाद
हैरत अंगेज तौर पर बकरी बिल्कुल ही बदल गई थी। अब वो उछलने कूदने लगी थी और पहले के मुकाबले में चारा भी ज्यादा खाती। लेकिन एक दिन अम्मा उठी तो खुशी से चीखते हुए कहने लगी, अरे बकरी के तो थन दूध से भरे हुए हैं, जल्दी बाल्टी लेकर आओ, मैं इसका दूध निकालती हूँ। देखते ही देखते पूरी बाल्टी दूध से भर गई थी। अब्बा अम्मा समेत हम दोनों बहनें भी हैरान रह गए थे, क्योंकि हमारे गांव में लोग बकरी का दूध बहुत शौक से पीते थे। जब मैं मानो के साथ मिलकर इस दूध को फरोख्त करने गई तो लोगों ने उससे हाथों हाथ खरीद लिया। यूं हमारे तो वारे ही न्यारे हो गए थे। अम्मा हैरान थी, कहने लगी, अरे ये कैसा जादू हो गया कि बकरी इतना ज्यादा दूध देने लगी है। हमने तो कभी नहीं देखा कि बकरी 1-2 किलो से ज्यादा दूध देती हो। फिर अब्बा कहने लगे, लगता है कि ये अच्छी नस्ल की बकरी है। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा जरूर इससे किसी की बुरी नजर लगी थी, तभी तो देखें मौलवी साहब ने दम किया और ये बिल्कुल ठीक हो गई। हम सब घर में बहुत खुश थे। उस बकरी के आने से तो हमारे घर में रौनक हो गई थी। लेकिन एक रात मैं घर के सहन में सो रही थी, जब अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो एक सफेद कपड़े पहने वजूद को मैंने बकरी के पास बैठे हुए देखा तो मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं इस वक्त ये जाहिर करना नहीं चाहती थी कि मेरी आंख खुल गई है, तभी चोरी छुपे उससे देखने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी जान निकल गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही नौजवान था जो उस दिन सफेद कागज मेरे हाथ में पकड़ा गया था। मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की नजर उस पर पड़े। तभी मैंने देखा वो बकरी की पुश्त पर हाथ फेरे जा रहा था। फिर मैंने खौफ के मारे करवट बदल ली। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे जागता हुआ देख ले। थोड़ी ही देर बाद वो यहाँ से गायब हो गया था। तभी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने कोई ख्वाब देखा था, तो कभी उस पर हकीकत का गुमान होता। मैं अपने साथ पेश आने वाले इस सूरत हाल को समझ नहीं पा रही थी। दूसरी सुबह मैं बकरी के पास आई। आज फिर उसके थन दूध से भरे हुए थे। अम्मा ने खुशी खुशी सारा दूध बाल्टी में निकाल लिया और फिर बानो से कहने लगी, जा इसे गांव में बेच कर आ जा और वडेरे की हवेली पर जरूर लेकर जाना, क्योंकि वडेरे की माँ बकरी का दूध शौक से पीती है और उसे डॉक्टरों ने भी दूध पीने को कहा है। अब बकरी रोजाना ही कई किलो दूध देने लगी थी और उसके दूध बेचने के बाद हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। अम्मा कहती है कि मैं तो इस बकरी को कभी खुद से जुदा नहीं करूंगी। लेकिन अचानक ही मुझे रात वाली बात याद आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सफेद कपड़े पहने हुए वजूद किसका था? आखिर उस नौजवान का इस बकरी से क्या ताल्लुक था? साथ ही मुझे कागज पर लिखी हुई तहरीर भी याद आई थी, जिसमें साफ लफ्जों में लिखा था कि मेरी अमानत तुम्हारे पास है। इसका मतलब है कि उस तहरीर में इसी बकरी का जिक्र किया गया था। ये अजीब सी सूरत हाल मेरे साथ पेश आ रही थी। फिर उस दिन गंदम की कटाई का आखिरी मरहला चल रहा था। अम्मा ने मुझे अब्बा का खाना बांध कर दिया और कहने लगी, जल्दी से इसे खेतों में देकर आ जा, फिर घर का काम काज निपटाना। आज मुझे जुबैदा की तरफ जाना है। जुबैदा उनकी छोटी बहन थी जो दूसरे गांव में रहती थी। मैं अब्बा की रोटी लेकर तेजी से खेतों की तरफ जाने लगी, जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे बुलाया हो। जैसे ही पलट कर देखा तो दरख्त के पीछे छुपे हुए उस नौजवान को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके सामने गई थी। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, क्या मेरी अमानत को वापस नहीं दोगी? हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लिया है। कौन सी अमानत? मैं घबराए हुए लहजे में उससे पूछने लगी। वो बकरी, वो मेरी है। तुम नहीं जानती कि वो मेरे लिए कितनी कीमती है, लेकिन वो तुम्हारे पास महफूज है। इस बात की मुझे खुशी है। तुम अपनी बकरी वापस ले जाओ, मैंने तंग आकर उससे कह दिया। उसने नफी में सर हिलाया, फिर कहने लगा, इस तरह से मैं इस बकरी को कहीं लेकर नहीं जा सकता। इसके लिए तुम्हें मेरा थोड़ा साथ देना होगा। क्या मतलब है? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। तो वो कहने लगा, आज रात मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरा इंतजार करना। ये कहने के साथ ही वो दरख्त के पीछे चला गया। मैं भागते हुए उस दरख्त के पीछे उसे देखने के लिए आई थी,
लेकिन उसके वजूद का नामो निशान भी नहीं था। अब मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई गैर फितरी मखलूक मेरे पीछे लग गई हो। मैं दोनों हाथों में सर थामे अब्बा के पास आई। अब्बा ने मेरी उड़ी हुई रंगत देख ली थी। परेशानी से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तभी बानो कहने लगी, देखो हम दोनों सुबह से धूप में काम कर रहे हैं और उसके ऐश हैं जो घर पर अयाशी करती है, फिर भी नखरे देखो इसके। वो मुझसे छोटी थी लेकिन ऐसे ही बात करती थी। मैंने उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं बनाया था। फिर चुपचाप दरांती लेकर बाकी बची हुई गंदम तेजी से काटने लगी। उस नौजवान की बातों पर मेरा सर चकरा रहा था। आखिर वो कौन था और इस तरह से मेरे सामने आकर कैसे गायब हो गया, और उस बकरी से उसका क्या ताल्लुक था? ऐसे कई सवाल मेरे सामने मौजूद थे। जब मुझे याद आया कि उसने रात को आने को कहा है, ये सुनकर तो मैं और भी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अम्मा तो आज रात घर पर ही नहीं थी। वो अपनी छोटी बहन के पास चली गई थी, जबकि अब्बा पूरे दिन के थके हारे बेखबर सो जाते थे। फिर रात को अब्बा और बानो को खाना देकर मैं अंदर कमरे में चली आई। अब्बा हैरान होकर कहने लगा, बेटा इतनी गर्मी में कैसे सोगी? लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए बानो को भी जबरदस्ती अपने साथ सुला लिया। अच्छी तरह दरवाजा बंद करके मैं बेफिक्र होकर सो गई। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो किसी को अपनी चारपाई के सामने खड़ा हुआ महसूस किया। आंखें खोलकर देखा तो चमकता हुआ सफेद लिबास में उस नौजवान का वजूद मेरे आंखों के सामने था। उसकी सफेद आंखें मुझे ही देखे जा रही थी। मैंने देखा दूसरी चारपाई पर बानो गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। मैं उसे आवाज देकर जगाना चाहती थी, क्योंकि मुझे इस वजूद से बहुत डर लग रहा था। आखिर ये कोई इंसान है या फिर जिन्सात जो रोजाना ही मेरे सामने आ जाता है? मुझे यूं खौफ से सहमा हुआ देखकर वो मेरे कदमों में बैठ गया था। फिर कहने लगा, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? मैं सहम गई थी। मेरी एक जान से प्यारी चीज तुम्हारे पास है, वो बकरी जिसे तुम इस कुएं के पास से लेकर आई थी, वो जिन्नाती बकरी है। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी थी। मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ, वो बकरी मेरी है और वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक जिन्स आती है। उसे हमारे ही कबीले के एक इंसानी आमिल ने बकरी के रूप में डाल दिया। वो कितनी बेबसी की जिंदगी गुजार रही है, कोई ये मुझसे पूछ कर देखे। मैं उसकी बातों पर हैरान रह गई थी। फिर हिम्मत करके उससे कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जिन्स आदि किसी बकरी के रूप में इंसानों के घर में मौजूद हो? तो वो उदासी से कहने लगा, यही हकीकत है, वो जिन्स आदि मेरी मोहब्बत थी। वो आमिल उसे हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो हमारे कबीले की सबसे खूबसूरत जिन्स आदि थी। लेकिन हम दोनों शादी करने वाले थे। जैसे ही वो मुझसे शादी करने लगी तो अचानक वो आमिल मेरी शादी में भेस बदल कर पहुंच गया। कोई भी उसे नहीं पहचान सका था, क्योंकि उसने एक खास अमल करके अपने आप को छुपा रखा था। फिर वो दुल्हन के सामने पहुंच गया। वो जिन्स आदि थी जो दुल्हन बनकर मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन देखते ही देखते उसने ऐसा अमल किया कि वो वहां से गायब हो गई। फिर बदला लेने के लिए उसने उसे बकरी के रूप में ढालकर कुएं के पास छोड़ दिया, ताकि हमेशा के लिए वो कुएं में कैद हो जाए। लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि तुम वहां से गुजर रही थी और तुमने उसे बचा लिया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे इस बात का काफी दिन बाद पता चला था कि मेरी जिन्साती को उस आमिल ने एक बकरी की शक्ल दे दी है, वरना मैं ये समझ रहा था कि वो शायद शादी छोड़कर फरार हो गई है। उसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं थी। जैसे ही मेरी जिन्साती अपने असल रूप में आएगी तो मैं उस आमिल से जरूर उसके किए का बदला लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं उसे इस अमल से आजाद करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इस सिलसिले में मदद कर सकती हो? लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं डरते लहजे में उससे पूछने लगी तो वो खुश होकर कहने लगा, इसके लिए तुम्हें 40 दिन का वजीफा करना पड़ेगा। रोजाना आधी रात को एक दफा सूरज जिन पढ़कर उस पर दम करना होगा। ये अमल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये अमल कोई इंसान कर सकता है। और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बदले में मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। जो तुम चाहती हो तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी कर दूंगा।
क्योंकि मैं ऐसी ताकत रखता हूँ। लेकिन बास काम हम जिन्नात नहीं कर सकते, वो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। लेकिन इस अमल के दौरान एक बड़ी परेशानी तुम्हें घेर सकती है। कैसी परेशानी? उसकी बात सुनकर मैं डर गई थी। वो परेशानी ये है कि जैसे ही तुम उस पर अमल करोगी तो उस आमिल को इस बात की खबर हो जाएगी कि उसके अमल का कोई तोड़ कर रहा है और वो तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ भी पहुँच सकता है। उसकी बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। अब मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर ऐसा हो गया तो ये तो मेरे लिए बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी और वो आमिल न जाने किस कदर शैतानी फितरतों का हामिल होगा, और अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं ये सारी बातें अपनी जहन में सोच रही थी। लेकिन अचानक ही उस जिनजात ने मेरी सोच पढ़ ली और कहने लगा कि वो आमिल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे घर के इर्द गिर्द ही मौजूद रहूंगा। वो आमिल उस घर में कदम भी नहीं रख सकेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इस बात की खबर किसी को भी ना हो कि तुम मेरा साथ दे रही हो। तुमने इस बकरी का जिक्र अपने अलावा किसी के सामने नहीं करना। ये बात सिर्फ तुम्हें मालूम है या फिर मुझे। इस बकरी का राज अगर किसी को मालूम हो गया तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी। फिर जिंदगी भर ना तो ये मुझे मिल सकेगी और ना ही किसी और को। अब मैं उस जिनजात की बात अच्छी तरह से समझ गई थी। मैंने उससे वादा कर लिया था कि मैं उसकी मदद ज़रूर करूंगी, और एक मासूम जिनजाती जो उस शैतान आमिल की वजह से इस कदर मुसीबत का शिकार है, अगर किसी को इस परेशानी से बचाया जा सकता है और वो अगर मेरे इख्तियार में है तो मैं हर मुश्किल और परेशानी उठाने के लिए तैयार थी। मेरे हामी भरने पर वो जिनजात बहुत खुश हुआ और फिर थोड़ी ही देर बाद मेरे सामने से गायब हो गया था। अब मैंने घर वालों की नज़रों से छुपकर ये अमल करना था। गो कि ये हकीकत मैं जान गई थी कि ये बकरी नहीं बल्कि एक जिनजाती है, और ये अपनी ताकत की वजह से हमारे पूरे घर को इतना फ़ायदा दे रही है। लेकिन ये किस कदर मजबूर होगी, मैं इसकी मजबूरी अच्छी तरह समझ रही थी। इसलिए मैंने अपना और अपने घर वालों का फ़ायदा नहीं देखा, बल्कि मैं उस जिनजाती को इस मुसीबत से दूर करना चाहती थी। फिर दूसरी रात जब सारे घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उठी थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सूरज जिन की तिलावत उसके पास जाकर करूंगी तो उसकी ताकत से वो दोबारा से अपने असली रूप में आ जाएगी। लेकिन ऐसा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस जिनजात ने कहा था कि आमिल को फौरन ही इस बात की खबर हो जाएगी कि मैं उसके अमल का तोड़ कर रही हूँ। मैं दिल ही दिल में बहुत डर रही थी। फिर घर में सब सो गए। मैं चुपके से उठकर बाड़े की तरफ आ गई, जहाँ पर बकरी आज भी सफेद आंखें लिए मुझे देख रही थी। हमेशा उसकी आंखों से आंसू टपकते हुए खुद मैंने अपनी आंखों से देखे थे। मैं समझ गई कि ये क्यों रोती थी कि जैसे ही मैं अमल करने लगी तो अचानक ही वो बुरी तरह चकराने लगी। वो तड़प रही थी, शायद अपने असली रूप में आने के लिए, लेकिन ऐसा करना अभी नामुमकिन था। जब तक ये अमल 40 दिन तक नहीं होता उसका असली रूप में आना नामुमकिन था। अब मैंने आज रात ये अमल कर लिया था। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मुतमईन थी, सोच लिया था कि अपना ये अमल 40 दिन तक जारी रखूंगी। लेकिन दूसरी सुबह जो हुआ वो मैंने सोचा भी नहीं था। जब अब्बा कहने लगे गांव में एक आमिल आया है, सारी औरतों का उसके आस्थाने पर रश है। मैं तो कहता हूँ कि रुखसार को भी उसके आस्थाने पर ले जाओ, तुम उसके रिश्ते का पूछ कर देखना आखिर कब हमारी बेटी की शादी होगी। मैं तो आमिल का नाम सुनकर ही डर गई थी, न जाने वो कौन था, कहाँ से आया था। लेकिन अब्बा बार बार अम्मा से कह रहे थे कि इसे वहाँ लेकर जाओ। मैं हैरान थी कि अब्बा को तो कभी भी इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, फिर वो मुझे ज़बरदस्ती वहाँ क्यों भेज रहे थे। फिर भी अब्बा का दिल रखने के लिए मैं अम्मा के साथ उस आमिल के आस्थाने पर चली आई। वहाँ तो पूरे गांव की औरतों का रश लगा हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई भी आमिल या मौलवी हमारे गांव में नहीं था जो औरतों के मसले मसाइल सुनकर उन्हें हल करने की कोशिश करता। और फिर हमारे गांव की औरतें इन चीज़ों को मानती भी बहुत थीं। तभी तो अम्मा मुझे अपने साथ लेकर यहाँ आ गई थी। अब मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। खुदा खुदा करके 2 घंटे बाद मेरी बारी आई तो मैं अम्मा के साथ आस्थाने पर चली गई। लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उसने अम्मा को बाहर जाने को कहा और अम्मा से कहने लगा
कि मैं तेरी बेटी के लिए एक खास अमल करूँगा। पता चल जाएगा कि इसकी शादी कब होगी, और उसकी रोशन पेशानी बता रही है कि ये बहुत अमीर घराने में शादी होकर जाएगी। अम्मा तो ये सुनकर खुशी खुशी बाहर चली गई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तभी उसने तेज नजरों से मुझे घूर कर देखा और सरगोशी में कहने लगा, लड़की, तेरी ही वजह से मैं इस गांव में आया हूँ, वरना मेरा ठिकाना कहीं और है। देख, मैं तुझे कह रहा हूँ कि उन जिन्नात का और मेरा मामला है, और तू बीच में मत पड़, वरना तेरा नुकसान हो जाएगा। तू जो उस जिनजादी को आजादी दिलवाने की सोच रही है, जानती भी है कि वो कितनी खतरनाक है। शैतान सिर्फ जिनजादी जो तुझे भी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती है। अगर तूने ये अमल किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। उसकी आंखों में जैसे लहू टपक रहा था। खौफ के मारे मेरी बुरी हालत हो गई, तो गोया उसको खबर हो गई थी कि मैं उसके अमल का तोड़ कर रही हूँ। तभी मैं उससे कांपते हुए लहजे में कहने लगी, तो तुम उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? क्यों उस बेजुबान को ऐसे कैद करके रखा है? वो इस कैद में तड़प रही है। उसका यही अंजाम होना था, क्योंकि उसने मुझे बहुत सताया है। जब मैं उसे उसके कबीले से उठाकर अपने साथ ले गया था, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मुझ पर अपनी ताकत का ऐसा असर दिखाया कि लोगों ने मुझे मेरे मोहल्ले से निकाल दिया, मुझे रुस्वा किया। तभी तो मैंने अपना बदला लेने के लिए उसे बकरी के रूप में ढाल दिया। मैं भी उसे अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरी ताकत ज़ायल नहीं कर सकती। ऐसा ना हो कि मैं तेरा अंजाम भी वैसा ही कर दूं जैसा मैंने उस जिनजादी के साथ किया। इसलिए खबरदार, जो अब दोबारा से वो अमल करने की कोशिश की। आज मैं इस काम में आया हूँ सिर्फ तुझे समझाने के लिए। दोबारा समझाऊंगा नहीं, बल्कि तुझ पर भी वही तरीका आजमाऊंगा जो मैंने उस जिनजादी के साथ किया है। वो आमिल मुझे धमकियां दे रहा था। मेरे चेहरे की रंगत पीली पड़ गई। मैं डरती कांपती अम्मा के साथ घर आ गई थी। घर आते ही मुझे तेज बुखार हो गया था। अम्मा परेशान हो गई। फिर अम्मा से गुस्से से कहने लगी कि क्या जरूरत थी तुझे उस आमिल के आस्ताने पर भेजने की? देख तो सही मेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। अब्बा भी कुछ परेशान हो गए थे, जबकि मैं खामोशी से चारपाई पर लेटी रही। जैसे ही आधी रात हुई तो अचानक मेरे कानों में आवाजें आने लगी, उस आमिल की बातों पर घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने जैसे ही करवट बदल कर देखा तो बिल्कुल मेरी चारपाई के साथ वही जिनजात खड़ा था। मैं दहशत ज़दा नजरों से उसे देखने लगी। तभी वो मेरे कदमों में बैठकर कहने लगा कि अब तुमने वजीफा शुरू कर दिया है, इसे अधूरा मत छोड़ो। देखो, मेरी जिनजादी को आज़ादी दिलवा दो, वरना वो सारी जिंदगी तड़प तड़प कर गुजारेगी। मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो आमिल इतना ताकतवर नहीं, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस तुम अपना अमल करो। अब मैं दिल पर पत्थर रखकर उसकी बातों में आकर दोबारा से वो अमल शुरू कर चुकी थी। फिर वो अमल करते हुए मुझे 2 दिन गुजर गए, लेकिन उस आमिल की तरफ से कोई खतरनाक इशारा नहीं मिला था। मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद वो खामोश होकर बैठ गया है, लेकिन ये सिर्फ मेरी गलत फहमी थी। उस दिन अम्मा घर पर नहीं थी और अब्बा और बानो दोनों खेतों में चले गए थे। और जब ही दरवाजे पर एक फकीर आया था, मैंने जैसे ही खैरात देने के लिए दरवाज़ा खोला तो अचानक उसने मुझे कलाई से पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं बुरी तरह चीख रही थी, बचाओ अम्मा, मुझे बचाओ, ये मुझे अपने साथ लेकर जा रहा है। मेरी चीखों पुकार सुनकर सब लोग जमा हो गए। सब लोग हैरत से मुझे देख रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि उस फकीर का यहाँ नाम व निशान भी नहीं था, हालांकि मैंने खुद उससे अपनी आंखों से देखा था। तभी बराबर में रहने वाली एक पड़ोसन कहने लगी, क्या हुआ रुखसार बेटा, किसे देखकर चीख रही हो? कौन नजर आ रहा है तुम्हें? वो सब हैरान थे, जबकि मैं आंसू साफ करती अंदर आ गई। मैं समझ गई कि ये सारा उसी आमिल का किया धरा है। वो अचानक ही लोगों की नजरों के सामने से ओझल हो गया है। अम्मा तक भी ये खबर पहुंच गई थी। तभी वो हामती कामती चली आई और मुझे अंदर लेकर चली गई। वो मेरी वजह से बहुत परेशान लग रही थी। अम्मा बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं इतनी डर गई थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी बताकर नहीं दिया।
दूसरे दिन इस खौफ के बावजूद भी मैंने अपना अमल जारी रखा था। लेकिन उस दिन मैं खेतों में अब्बा को रोटी देने जा रही थी जब अपने पीछे किसी की भारी कदमों की आवाज सुनकर पलटी तो साकित रह गई। वो आमिल सहर आलूद नजरों से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, अभी तो मैंने सिर्फ तुझे अपनी हल्की सी झलक दिखाई है। अगर तू बाज ना आई और उस जिन साथी को तूने फिर भी इस अमल से आजाद करने की कोशिश की तो मैं तुझे तेरे पूरे गांव में बदनाम कर दूंगा। फिर सोच, कल को तेरी शादी भी नहीं हो सकेगी। कौन तुझसे शादी करेगा? सब तुझे पागल समझेंगे। उसकी बात पर मैं खामोशी से उसे देखती रह गई। फिर जब उसने मुझे यूं चुप देखा तो कहने लगा, अभी भी वक्त है, सोच लो और उस बकरी को मेरे हवाले कर दो। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। फिर मैं जानूं और वो जिनसात जो तेरे पीछे पड़ा है। इसके बाद तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चला गया था, जबकि मैं हैरान परेशान चेहरा लिए अब्बा के पास खेतों में चली आई। आज गंदम मिलने वाली थी क्योंकि आज आखिरी दिन था। सारे खेत साफ हो चुके थे, सारी गंदम की कटाई हो चुकी थी। आज गांव में बहुत खुशियों का दिन था, लेकिन मैं अपना वजूद बहुत बोझल महसूस कर रही थी। दिल चाह रहा था कि यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं। घर आई तो अम्मा कहने लगी, देख, दो दो बाल्टियां भर गई। ये बकरी तो हमारे लिए बहुत बख्तावर साबित हुई है। मैंने बेजारी से उस बकरी को देखा जो मेरे लिए वबाले जान बन गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाह रहा था कि इस बकरी को सामिल के हवाले कर दूं तो मेरी जान छूटे। लेकिन तभी किसी की दर्द भरी आवाज मेरे कानों में गूंजी, जो अपनी जिनसादी को पाने के लिए बेचैन था। शायद वो इससे शदीद मोहब्बत करता था। फिर उस रात मैं चारपाई पर पड़ी हुई थी तो मेरे कानों में आवाज आई, अमल अधूरा नहीं छोड़ना, इसे हर हाल में पूरा करना है। चलो उठो शाबाश और वो अमल शुरू कर दो। ये जिनसात की आवाज थी। दूसरी तरफ आमिल के खौफ ने गोया मेरी कुव्वत गोयाई ही बंद कर दी थी। मैं ना चाहते हुए भी उठी और मैंने वो अमल शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि कल वो जरूर इस घर में आएगा। फिर दूसरे दिन अम्मा हवेली जाने लगी क्योंकि आज गंदम मिलने वाली थी। बानो भी खुशी खुशी अब्बा के साथ जा रही थी। मैं भी अकेली घर में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मा कहने लगी, तूने इस बकरी के साथ रहना है, इसे अकेला नहीं छोड़ना। ये तो हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि हमारे हालात भी बदल रहे हैं और देखो हाथ में पैसे भी आ रहे हैं। जरूर ये सब इस बकरी का कमाल है। वो बड़ी खुश लग रही थी, लेकिन मैं बेजारी से सोचने लगी कि कल नहीं तो आज इस बकरी को वापस इसकी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि ये कोई जानवर नहीं बल्कि एक जिनसादी थी जिससे उस शैतान सिर्फ आमिल ने जबरदस्ती बकरी का रूप दे दिया था। फिर अम्मा मुझे घर में अकेला छोड़कर चली गई। मैंने अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो आमिल जबरदस्ती घर के अंदर ना आ जाए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक किसी की दीवार कूदने की आवाज़ आई तो खौफ के मारे मैं बुत बन गई। मैं जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप गई। मैंने देखा वो आमिल पूरे घर में मुझे तलाश करता फिर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं चीखे मारकर लोगों को जमा करती तो वो गायब होने की ताकत भी रखता था, क्योंकि उससे बड़े बड़े अमल करने आते थे। फिर वो उस बकरी को तलाश कर रहा था जिसे मैंने बाड़े में छुपा रखा था। अगर ये उस बकरी को अपने साथ लेकर जाएगा तो कभी भी ये आज़ादी हासिल नहीं कर सकेगी। नहीं नहीं, मुझे इस बकरी को बचाना है। यही सोचकर मैं उसके सामने चली गई। उसने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, हट जा मेरे रास्ते से, मैं इस बकरी को लेने आया हूँ और अपनी जान की सलामती चाहती है तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ मुझे करने दे, लेकिन मैं इस बकरी को तुझे लेकर जाने नहीं दूंगी। मैं हतमी लहजे में उससे कहने लगी तो वो गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, तू क्या कर सकती है? तू एक कमजोर लड़की है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अभी चाहूँ तो तुझे चुटकी में बदनाम कर दूं, सारे मोहल्ले के लोगों को जमा करके यहाँ इकट्ठा कर लूंगा, तो कल को कौन तुझसे शादी करेगा? उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई, लेकिन उससे पहले कि वो बकरी को अपने साथ लेकर चला जाता, अचानक ही दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई थी। मैंने भागकर दरवाजा खोला था। सामने गांव में रहने वाला मौलवी खड़ा था। वो कहने लगा कि इस घर से अजीबो गरीब सी आवाजें आ रही हैं। कौन है तेरे घर के अंदर? कहीं वो शैतान आमिल तो नहीं? मैं हैरान थी कि उससे ये खबर कैसे मिल गई। तो वो मौलवी कहने लगा, वो आमिल जो इस गांव में आया था उसके पीछे पुलिस पड़ी है।
और पुलिस उसे काफी अरसे से तलाश कर रही है। मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। तभी पुलिस वाले आकर घर की तलाशी लेने लगे। मैं हैरान थी कि पल भर में ये क्या हो गया था। मैंने बकरी की रस्सी को खुशी खुशी मजबूती से थाम लिया। आखिरकार वो आमिल को अपने साथ लेकर जाने वाले थे, लेकिन वो लोगों की नजरों से ओझल हो चुका था क्योंकि उसे ये अमल करना आता था। फिर मैं मौलवी साहब से सरगोशी में कहने लगी, वो यहीं कहीं पर मौजूद है, लेकिन आप लोगों की नजरों से गायब है। मौलवी साहब ने ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे ही पढ़कर दम किया तो सामने खड़ा आमिल का वजूद सबको दिखाई देने लगा। वो दरवाजे के पीछे छुपा खड़ा था। तभी पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आमिल बुरी तरह चीख रहा था, लेकिन मौलवी साहब उन सबके सामने कहने लगा कि ये एक मक्कार इंसान है। उस दिन गांव में उसने किसी औरत के सारे जेवरात लेकर उसका काम नहीं किया। ये एक लालची इंसान है, कई औरतों की इज्जत पर भी हाथ डाल चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अब उसे कभी भी जेल से बाहर मत आने देना। आखिर वो शैतान आमिल अपने अंजाम को पहुंच चुका था। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मैं प्यार से उस बकरी की पुश्त पर हाथ फेर रही थी। पल भर में सारे गांव में हंगामा मच गया कि उस आमिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर अम्मा तक भी पहुंच गई। वो दौड़े दौड़े घर आए थे। अम्मा कहने लगी, वो यहाँ ही क्यों था? क्या तूने उससे बुलाया था? मैंने नफी में सर हिलाया और कहने लगी कि नहीं अम्मा, वो शैतान आमिल हमारी बकरी को लेने आया था। उसका कहना है कि जिस तरह हम इससे फायदा उठा रहे हैं, इसी तरह वो भी इससे फायदा उठाना चाहता है। शुक्र है कि ऐन वक्त पर वो मौलवी साहब पहुंच गए। अब हम सब ने शुक्र के कलमात अदा किए थे। मैं भी मुतमईन होकर आधी रात को बैठकर वो वजीफा करने लगी। लेकिन उस रात अब्बा ने मुझे वजीफा करते हुए देख लिया। फिर दूसरे दिन गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगे, ये तू घर में क्या करती फिर रही है? मैं देख रहा हूँ कि आजकल तू कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। सच सच बता, क्या मामला है? अब खामोश रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने सारी बात अब्बा के सामने रख दी और कहने लगी कि अब्बा, आप खुद सोचें कि जो बकरी इतना इतना दूध दे वो कोई आम बकरी तो नहीं हो सकती। ये बकरी नहीं बल्कि एक जिन्स आती है। ये सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जबकि अम्मा और बानो ने भी मेरी बात सुन ली थी। अम्मा कहने लगी, क्या तू सच कह रही है? मैंने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, हाँ अम्मा, मैं एक वजीफा कर रही हूँ। अभी सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इसके बाद ये बकरी एक जिन्स आदि बन जाएगी। हमने इतने दिन से इसका ख्याल रखा है, इसलिए क्योंकि ये एक जिन्स आदि है। अगर हम उसे इस आमिल के हवाले कर देते तो वो उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता और फिर इससे फायदा उठाता। उसने ही इसे बकरी की रूप में ढाला था। अम्मा आमिल को कोसने देते हुए कहने लगी, कैसे इस मासूम जिन्साती को एक बकरी की सूरत देती? बेचारी किस कदर अजियत में होगी। अब अम्मा अब्बा भी मेरा साथ दे रहे थे। फिर 4 दिन के अमल के बाद बिल आखिर वो आखिरी रात थी, जब जैसे ही मैंने वजीफा पढ़कर उस पर दम किया तो वो फौरन से ही एक खूबसूरत जिन्साती के रूप में ढल गई। उसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन वो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर मुझे डरते हुए देखकर कहने लगी, तुम एक नेक दिल लड़की हो, तुमने मेरे लिए इतनी मुसीबत मोल ली। थोड़ी देर बाद वो जिन्नात भी सामने आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे और मैं उनकी मोहब्बत की तकमील देख रही थी। मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो जिन्सात कहने लगा, ये लड़की वाकई ही तारीफ के लायक है, लेकिन हम इसे इनाम जरूर देंगे। अब हम अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं, अपने कबीले में, जहाँ पर शहंशाह जिन्नात हमारा इंतजार कर रहा है। फिर हमारी शादी हो जाएगी तो हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। मैंने उन्हें खुशी खुशी अलविदा कह दिया था। दूसरे दिन जैसे ही सारे घर वाले सोकर उठे तो बकरी गायब थी। अम्मा परेशानी से कहने लगी, तो क्या वो बकरी हमेशा के लिए चली गई है? मैं उदासी से कहने लगी, हाँ अम्मा, उससे तो एक दिन जाना ही था। जितने दिन हमने उससे फायदा उठाना था उठा लिया। तो अम्मा कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए हैं। अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी। मैं तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। एक दिन मेरी बेटी भी दुल्हन बनेगी। वो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। मैं अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। लेकिन एक रात जब सब घर वाले सो रहे थे, तब कोई दीवार से कूदकर अंदर आया। धमाके की आवाज के साथ ही मेरी आंख खुल गई थी।
میں نے دیکھا وہ نقاب پوش لمبا چوڑا وجود جو سیدھا میری چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ نکلتی، اچانک ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بری طرح تڑپ رہی تھی، لیکن وہ لال انگارہ آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو نے اچھا نہیں کیا، مجھے پولیس میں بھی گرفتار کروا دیا اور میرے ہاتھ سے وہ جن ذاتی بھی چلی گئی۔ اب اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوا گھر سے غائب ہو گیا، جبکہ میں بری طرح خوفزدہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ پھر گاؤں کے ایک معزز گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ اماں نے ہاں کر دی تھی اور 2 مہینے بعد ہی میری شادی کی تاریخ طے کر دی۔ لیکن بار بار مجھے اسی عامل کی دھمکی یاد آتی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ میری شادی خیر خیریت سے ہو جائے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پھر اس رات میں پریشان چہرہ لیے اکیلی بیٹھی تھی جب مجھے اپنے پیچھے ایک مہربان آواز سنائی دی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ جن ذاتی کڑی تھی۔ میں اسے پہچان گئی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں میرے لیے ایک تحفہ تھا۔ پھر اس نے وہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگی، یہ تمہارے لیے خوبصورت زیورات ہیں جو بہت قیمتی ہیں۔ میں تمہیں تمہاری شادی کا تحفہ دینے آئی ہوں۔ میں اسے پریشانی سے کہنے لگی کہ وہ عامل میری شادی نہیں ہونے دے گا، وہ میرا دشمن بن چکا ہے۔ تبھی اس کے پیچھے کھڑا وہ جنات میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جب شہنشاہ جنات کو یہ بات پتہ چلی کہ انسانی دنیا میں رہنے والی ایک لڑکی نے ہماری اتنی مدد کی ہے، تو انہوں نے اپنی پوری جنات کی فوج کو تمہاری شادی میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم سب تمہاری حفاظت کریں گے اور اس عامل کو تمہارے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس لیے اپنے دل سے یہ خیال نکال دو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ یہ سن کر میں بے تحاشا خوش ہو گئی تھی۔ اب گھر والوں کے ساتھ مل کر میں بھی اپنی شادی کی خوشی خوشی تیاریاں کرنے لگی۔ اب میرا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ میں دل سے مطمئن ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ پھر چند دن بعد میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے اس عامل کا خوف کھائے جا رہا تھا، لیکن اب بانو مجھ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے، شاید تو اس شادی پر راضی نہیں، لیکن اب تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ تو دل و جان سے شادی پر راضی ہو چکی ہے۔ میں اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور تھوڑی ہی دیر بعد میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ میرا شوہر ایک نہایت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت اچھی زندگی دی۔ پھر بھی کبھی کبھار مجھے اپنی پچھلی زندگی کی یاد آتی ہے تو مجھے وہ جناتی بکری بھی یاد آ جاتی ہے۔ جتنے دن تک وہ ہمارے گھر رہی تھی اس نے ہمیں بہت فائدہ پہنچایا، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک بکری نہیں بلکہ ایک جن ذاتی تھی۔ اس شیطان عامل نے اسے بکری کا روپ دے دیا تھا، لیکن میری تھوڑی سی کوشش کے بعد وہ اپنی زندگی بہت آزادی سے گزار رہی تھی۔ اگر وہ عامل اسے اپنے ساتھ لے جاتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا، لیکن میں بہت خوش تھی کہ ان دونوں جن ذات اور جن ذاتی کی شادی ہو گئی تھی۔ یقیناً وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔